is a region of history, legends, and distinct culture. Hi, I'm Pooja Sawant and I'm in Amravati to soak in its deep-rooted tradition, delicious food, and a whole lot of nature. Only on Flavors of Maharashtra. Tangy, sweet, salty, and extra spicy too. Maharashtra is a melting pot of diverse tastes and food traditions. बहुत ही लजीज लग रहा है ये. इसकी हवा टाइट होनी चाहिए. Join us as we travel across the state to explore its culture, cook with local communities, Yes. I can't wait to eat. and unravel histories with culinary experts. Hi, I'm Pooja Sawant. मैं हूँ अर्जुन बिजलानी. मैं हूँ विद्या मालवते. यशराज मुखाटे. Maharashtra Tourism presents Flavors of Maharashtra. अमरावती डिस्ट्रिक्ट की कल्चरल हेरिटेज है यहाँ के प्राचीन काल के शिवा टेम्पल्स, जो हेमाड़पंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए गए थे. चाहे वो लासुर का 800 साल पुराना आनंदेश्वर मंदिर हो या फिर कोंडेश्वर मंदिर. और यहाँ के टेम्पल्स आपको कई किस्से और कहानियां सुनाते हैं. लाइक द लेजेंडरी विठल रुक्मिणी टेम्पल इन कौंडिन्यपुर, जिसे महाभारत में कुंडिनपुर कहा गया है और उस समय ये विदर्भ की राजधानी मानी जाती थी. Amravati is also known as Amba Nagari because of the ancient Amba Devi temple. That's the reason I'm going to start my journey with Amba Devi temple, which is in the heart of the city. This ancient temple of Amba Devi is really very beautiful, and of course, the darshan was indeed a divine experience. Well, the start is great, and now I'm more excited to explore more flavors of Amravati. Fresh vegetables, traditional stores, and a lot of color. अमरावती के वाइब्रेंट फ्लेवर्स मिलते हैं यहाँ के इतवारा बाजार में. And every city landmark thrives with street food. चाहे कचौरी और कुल्फी हो या फिर आलू पोंगा, यहाँ हर डिश को खाने का अंदाज कुछ अलग ही है. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि गीला वड़ा is the special food and you get it on the breakfast. This is the oldest place where you'll get the best Gila Vada in Amravati. And that's my Gila Vada. Too good. भैया बनता कैसे है? ये उड़द का बनता है गीला वड़ा. इसको हम पहले फ्राई करते हैं, फिर इसको हम पानी में डालते हैं, तो इसका ऑयल पूरा निकल जाता है और ये पौष्टिक भी होता है मतलब. और ये जगह बहुत पुरानी है ना, यहाँ पे गीला वड़ा मिलता है. मतलब अमरावती में 50 साल के ऊपर से गीला वड़ा मिल रहा है. अमरावती के अलावा गीला वड़ा कहीं नहीं मिलता. तो ये अमरावती की स्पेशलिटी है. स्पेशलिटी है. I can't say no to delicious food यार. I mean, look at this. And if you get such a good, tasty and healthy breakfast in the morning, what else do you want? Being foodie, I'm always in search of good food, tasty food.
So I found out they have one very interesting snack called sambar vadi. So I am at Raghuveer Sweets. This is one of the most famous shop in Amravati. It's very hot, but I'm pretty sure it's very delicious. I'm going to try this. This sambar vadi is actually very delicious, and the best part about this snack is this is all-time snack. Matlab, you can have it for breakfast, you can have it for lunch, you can have it for evening snack, and also for dinner. It is that tasty. ये संभार वड़ी एक्चुअली संभार, शेंगदाना और बहुत से इंग्रेडिएंट्स डाल के बनती है। आज 50 साल से हम बना रहे हैं और पूरे देश विदेश में फेमस है और हर जगह जाती है। I must say that whenever you'll come to Amravati, you should come to Raghuveer Sweet. मतलब अगर ऐसे गर्मा गर्म खानी है तो आपको अमरावती गर्मा गर्म 12 ही घंटे गर्मा गर्म ही मिलती है आपको। I'm happily exploring flavors of Amravati, and trust me, this is one of the best flavor of Amravati, sambar vadi. I finished it all because I have a long journey ahead. मुझे और बहुत सारे flavors explore करने हैं. So you all have to be with me. Thank you guys. Amravati has Maharashtra's one of the most unique gardens, and that is Bamboo Garden. इंडिया का सबसे बड़ा बैम्बू प्लांट कलेक्शन इस गार्डन में देखने को मिलता है। You'll find as many as 74 different species of bamboo trees here. And you can see the impressive collection of cactus. I'm so relieved that I found my own green spot in this beautiful city of Amravati. महाराष्ट्र राज्य के हर एक शहर की एक अलग खासियत है, और अगर आप अमरावती में हो तो जो अमरावती की खासियत है उसको आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, जो है वऱ्हाडी क्यूजिन. पूर्वीचा वऱ्हाड प्रांत आणि आताचा विदर्भ, या विदर्भामध्ये जे पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेली पदार्थ आहेत जे आजही आवडीने खाल्ल्या जातात. So right now I'm at a very beautiful place called Farmhouse, and I'm going to try Varahadi cuisine, but also I'm going to meet someone very special. माझं नाव रजनी सावरकर आहे. मी फार्म हाऊस मध्ये माऊली किचनचं व्यवस्थापन पाहते. नमस्कार. 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 नमस्कार ताई. आमच्या फार्म हाऊस मध्ये आपलं स्वागत आहे. मला इथे कळलंय की बेस्ट वऱ्हाडी फूड ह्या फार्म हाऊस मध्ये मिळतं. बरोबर आहे? बरोबर. पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करून चुलीवरचं शुद्ध शाकाहारी जेवण देण्याचा आमचा एक छोटासा प्रयास आहे. इथून प्रत्येक जण हा तृप्त मनाने आनंदी होऊन जावा या अपेक्षेतून आम्ही हे सुरू केलेलं आहे. So finally our Varahadi food has arrived. हे काय आहे? याला आम्ही रोडगा म्हणतो. विशेषतः शेतामध्ये हे जेवण याच पद्धतीने द्यायचं. जेव्हा गव्हाच्या जाड कणकीपासून बनवलेले रोडगे जगर म्हणतात त्याला, गोवरीच्या आहारामध्ये वाफेवर शिजवलेलं राहतात. आणि हे काय आहे? हा एक कढी गोळा. दह्यापासून ताक बनवायचं, त्या ताकाची कढी आपण म्हणतो. ताकाच्या कढीमध्ये गोळे शिजवल्या जातात तुरीच्या डाळीचे. आणि मला हे सांगा, हे काहीतरी फार ही इंटरेस्टिंग. पुरणपोळी. मी तुम्हाला माझ्या हाताने पुरणपोळी भरवते. Oh, so sweet. Thank you so much, Raji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so धन्यवाद. much.
वेजिटेरियन फूड इतना टेस्टी भी हो सकता है, ये वराडी फूड खा के मुझे पता चला. दिस इज सो अमेजिंग. अजून एक वैशिष्ट्यपूर्ण विदर्भातील अजून एक? प्लेट येत आहे. त्यासाठी एक सरप्राईज Oh my आहे. God. ही आमच्या विदर्भातली डिश आहे, सरगुंडे आणि आंब्याचा रस. यात रवा आहे आणि थोडं मीठ घातलंय आणि हे भिजवून ठेवलंय आणि याला सर म्हणतात. त्याच्यावर हे तयार करत असतात. हे तयार करून उन्हात वाळवत ठेवतात आणि आंब्याचा रस, उन्हाळ्याच्या याच्यात आंब्याच्या रस सोबत हे सगळेजण खातात. Sargunda is mixed with amras and a lot of ghee, and I'm going to try this. वराडी फूड में इतना सारा खाना है, लेकिन I think this Sargunda and amras is I think top on the वराडी food. It's खूपच सुंदर है. I love being in nature, and specifically when it comes to hill stations. Hill stations are my ideal escape. So right now I'm going to Chikaldara, जो विदर्भ का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और जो अमरावती सिटी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है. I only heard about Chikaldara. It's very pretty, it's very exciting, so many adventures. और मुझे कार राइड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. सो कार राइड्स एंड आई एम गोइंग टू हिल स्टेशन. अजून काय पाहिजे? चिखलदरा जाते वक्त बीच में एक बहुत ही खूबसूरत गांव लगता है जिसका नाम है मोठा गांव. और इस मोठा गांव की ना एक बहुत ही प्यारी खासियत है. नमस्कार. नमस्कार. ये आप क्या बना रहे हो? आप खवा बना रहे हैं. खवा बना रहे हो. तो मैंने इसे सुना था कि ये जो मोठा गांव है, अगर आप चिखलदरा जा रहे हो तो जो दूध से बने हुए बहुत सारे पदार्थ हैं, हाँ. वो यहाँ पे बहुत ही बेस्ट मिलते हैं. हाँ. खवा मिलती है, रबड़ी मिलती है, कलाकंद, पेड़े, यानी खवे से जो भी कोई मीठा ये बनता है तो हम सब बनाते हैं. और वो फ्रेश बनता है. फ्रेश बनता है. थैंक यू. वाह वाह वाह, गर्मा गर्म ताजा खवा है ये. वाह, इतका फ्रेश खवा मी कधीच खाल्ला नव्हता यापूर्वी. इट्स टू गुड. मैंने ये भी सुना है कि मोठा गांव में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है गौड़ी कम्युनिटी. हाँ. उसके बारे में थोड़ा बताइए आप. हमारे पास में गैया भैंस है. हाँ. गैया भैंस चराने वाले लोग हैं. अच्छा. हाँ. तो ताजा दूध मिलता है हमेशा इनको. ताजा दूध से ये गाय भैंस रबड़ी चराना बनाते और हैं. दूध निकालना, उसका दूध का खवा बना के रबड़ी, कलाकंद, ये वो. क्या बात है. तो जितने सारे टूरिस्ट चिखलदरा आते हैं वो यहाँ पे रुकते ही है हाँ. रबड़ी और खवा खाने के लिए. तुम्हाला आता अर्धा तास अगोदर काढलेला खवा दाखवतो. सो ये जो खवा है, हम गाजर हलवा या दूधी हलवा में जब फ्रेश खवा डालते हैं, दिस इज इट. आई एम गोना ट्राई इट. इसमें बिल्कुल शक्कर नहीं है. एक अलग मिठास है इस खवा में. मतलब जो दूध की मिठास होती है ना, वो उस खवा में है. दिस इज टू गुड. चिखलदरा की पहचान है यहाँ के सीनिक व्यूज और स्टनिंग विंड मिल्स, जिससे इस हिल स्टेशन को क्लीन एनर्जी मिलती है. तो क्यों ना इन्हें एक थ्रिलिंग वे में एक्सप्लोर किया जाए. इन चिखलदरा I found both adventure and solitude. So when are you coming here? To all coffee lovers, we know that we grow coffee in Karnataka, Kerala and many other states in India. But do you know that even Maharashtra has coffee plantation? Yes, right now I'm in Chikaldara और चिखलदरा सिर्फ एक ही ऐसी जगह है महाराष्ट्र में जहाँ कॉफी प्लांटेशन है. Madam, welcome. Hello sir, Hi. hello. Hello, Baraka. So wonderful to meet you. Yes, I'm come. Pooja. I am Father Simon.
It's lovely meeting you. Thank you, thank you. So I've just visited coffee plantation and it is amazing. Almost 5 lakh trees I planted. 5 lakh trees you've planted. Coffee plants. Wow, that's 5 amazing. lakh. So what happened was the former priests, missionaries, they came 100 years back. Okay. So when they saw that this place is exactly like of Europe, and other cultivation was not possible, so they brought the seeds from Europe. Oh, they brought the seeds from Europe. And they leased the land from the British government and started planting the coffee. Oh, so now this is almost 100 years. I've never seen coffee beans before. और आज जब मैंने पहली बार दिखे तो वो green color के थे. Okay, yeah. So वो green coffee के beans, how you turn into a coffee powder? I really want to know. Yes, I'll come. So, super. So this is the coffee plant, you know, as you have seen. Yeah, I've seen the coffee plant. So, and those are green coffee Green beans. coffee. Cool. So in the month of November, it becomes red color. Cherry becomes. Okay, they turn red. Yeah. Cool. Then we pluck the coffee. Okay. We put in the sunlight for 20 days. 20 days? Yeah. Oh my God. So it becomes like a black color. Yeah, the black color. Okay. Okay. Then we go for pounding. Yeah. After pounding, the coffee seeds become green coffee. This is called green coffee. Now they somewhere started looking like coffee beans, which This is called a green coffee. After that, we put the seeds into the machine. Oh, this machine. This is very authentic way of making coffee. This is handmade. It will take at least 40-45 minutes to... 45 minutes? Yeah. Oh my God. Yeah. And after this? After this, this becomes like this one. Those are coffee beans. Yeah. After this, we grind the seeds. It becomes the coffee powder. Coffee powder. Pure and very natural. Wow. Yeah. अभी तो कॉफी पीनी पड़ेगी because ये बहुत ही प्योर है. So इसी पे let's have coffee. So I found the perfect spot and the perfect moment in Chikhaldhara to have some me time. और साथ में कॉफी भी है, तो और क्या चाहिए? Located in Satpura Hills, Chikhaldhara is surrounded by Melghat Forest. It's a protected area for the tiger. In fact, it's one of the largest tiger reserves of India. So finally, my jungle safari has started. Right now, we are entering in Melghat Tiger Reserve. I'm very, very excited for this, and you can see it's so beautiful out here. It's cold, but I'm having fun. There are two beautiful salmon right in front of me. Near the lake, they are drinking water. We shouldn't make so much of noise because they might run away. And come on, it's their home, so you have to be quiet. If I'm lucky, शायद मुझे टाइगर दिख जाए, लेकिन क्या करें, ये जंगल उसका है, उसकी मर्जी यहाँ पे चलती है. This jungle is so quiet yet so alive. This jungle is very, very beautiful. Melghat is home to many forest communities and rich tribal cultures. And right now, I'm meeting someone who's helping preserve their traditions. Let's go. नमस्कार ताई. नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. मी पूजा सावंत. मी निरुपमा देशपांडे, संपूर्ण बांबू केंद्र. हा आमचा ग्राम ज्ञानपीठ परिसर आहे. ग्राम ज्ञानपीठ मी खूप ऐकलं ह्याच्याबद्दल. इथे आपण भारतीय संस्कृतीचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याकरता इथे दरवर्षी कार्यक्रम आयोजित करतो. संपूर्ण बांबू केंद्र अभी 26 साल हो गए यहाँ पे कार्यरत है. और ये संस्था मैंने और मेरे पति डॉक्टर सुनील देशपांडे इन्होंने शुरू की थी. मेलघाट के जो कोरकू आदिवासी लोग हैं, इनकी पूरी संस्कृति में, जीवन में बांस का बहुत बड़ा महत्व है. ये लोग अपने घर और खेती के सब कामों में बांस का उपयोग करते हैं. हमने संपूर्ण बांबू केंद्र में इनकी ये कला को कुछ आधुनिक स्वरूप दिया और सुंदर सुंदर वस्तु बना के अपने जीवन के लिए पैसे कमाने को सिखाया. यहाँ पे ज्यादा करके कोरकू लोग रहते हैं, कोरकू आदिवासी लोग. कोरकू शब्द का अर्थ है मानव. इनका मुख्य काम तो यही है, खेती करते हैं. और परंपरा से जो अनाज यहाँ पे बोते आए हैं, कोदो, कुटकी और सावरिया, ये तीनों परंपरागत अनाज है.
अरे वाह, या इकडे क्या बनाया है आज आपने मेरे लिए? मक्का का रोटी। मक्का का रोटी। अरे वाह। उसके साथ ही बहुत सारी हरी भाजियाँ भी उसमें रहती है, तो वो भी लाके खाते हैं। इस खाने की खुशबू इतनी आ रही है ना, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आदिवासी लोग यहाँ के बारिश के दिनों में जब नया बांस निकलता है उसको खाते भी हैं। उसकी सब्जी बनती है, उसके भजिए बनते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सब्जी ट्राई करूंगी, बांस की सब्जी। बहुत ही अच्छी है। एक और सब्जी है यहाँ पे, चूच का भाजी। वो एक हरी भाजी है, जंगल से लोग ला के खाते हैं। ये यहाँ का ऑथेंटिक खाना है। ये खाना उतना ही प्यारा है जितने कि यहाँ के लोग। सो थैंक यू। डांस और म्यूजिक कोरकू समाज के कल्चर का अटूट हिस्सा है और इनके ट्रेडिशनल डांस को गदली कहते हैं। It's performed on social occasions with rhythmic beats and impressive steps. This dance truly signifies this celebration of life. My journey through Vidarbha has been incredible. I started with अमरावती। वहाँ पे मैंने अमरावती का लोकल फूड ट्राई किया और जो विदर्भ का वराडी फूड है वो भी मैंने ट्राई किया। बहुत प्यारे लोगों से मैं मिली। So my entire journey was amazing. मैंने बहुत मज़ा किया and I'm pretty sure जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको भी उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया। So, what are you waiting for?